other than that, like what skills do I need before applying, and what mistakes should I watch. So ये सारे questions हमारे सबके माइंड में आते हैं जो भी यूसेमिली के लिए, जो भी यूसेमिली जर्नी स्टार्ट करता है। सो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उनके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि रिसर्च इज़ नो डाउट वन ऑफ द मेन part of this journey. And that's why in this session, in tonight's session, we will address these questions, and like we will provide practical guidance on navigating the research journey successfully. So, okay, so for that we are really fortunate to have a very good friend of mine, that is Dr. Ibrahim. He is with us tonight, and he has extensive experience in research and mentorship. Like Ibrahim, I know him really well during house job के बाद I think he went to US, और वहाँ पे उसको research position भी मिल गई. So basically our whole session will be on this very important topic, that is the research roadmap. Okay. Um, is everything clear till now, right? Am I audible, right? जी शबीर भाई, yes. Okay, thank you. So before we start, I just Ibrahim, if you could just introduce yourself, and then we will start from the very important question that is in everyone's mind. Okay, so am I audible, Shabir? Yes, you are audible. Perfect. Hi everyone. So my name is Ibrahim. Everybody know me or not, it's okay. जस्ट मेरा ताल्लुक बेसिकली है मानसरा से, और मैं इस्लामाबाद में हूँ. मैंने बरूम मेडिकल कॉलेज से 2024 में ग्रेजुएशन की थी. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय हाउस जॉब इन LRH, and in last rotations I came to US for my observerships and step 3 in my cycle stuff last year, and fortunately I got matched in this cycle. Apart from that, research was one of my important like you can say fantasy, और मुझे शौक था, तो मैंने उसके लिए जो है अप्लाई किया था डिफरेंट साइट्स पे, लाइक हॉस्पिटल्स में यूएस के अंदर. सो लकीली आई गॉट इट Mayo Clinic. So directly after submission of my ERAS application, I got accepted at Mayo Clinic from one of the faculty here at Department of Nephrology. So I'm working here as a post-op research fellow, और next month से मैं अपनी residency start करूँ. So it's my last month here and I'm moving back. सो ओवरऑल रिसर्च के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं, मोस्टली ऑन मेरे अपने पेयर ब्लॉग पे भी आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, और अक्सर डीम्स में, मतलब कि हर बंदा पूछ रहा होता है कि हाउ टू गेट अ रिसर्च पोजीशन. So first of all, I just want to ask from the students here, like most of the people here are like undergrads or recently graduated, because उस मुताबिक थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन को थोड़ा सा मैं लिमिटेड रखूँ, क्योंकि हर बंदा जो है फिर अपनी स्ट्रेटेजी उस मुताबिक बनाएगा. ऐसा नहीं है कि लाइक अंडर ग्रेड्स हैं तो उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, पोस्ट ग्रेड्स की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, और रिसर्च पोजीशन जो होती है सिर्फ दूर से ऐसे लग रहा होता है कि लाइक दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, और हमें डायरेक्ट मिल जाएगी और हम लोग जाएंगे करेंगे और बस बात खत्म. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सो आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर लाइक अंडर ग्रेड्स और लाइक दे आर पोस्ट ग्रेड्स. जस्ट लेट मी नो. पोस्ट ग्रेड्स, अंडर ग्रेड्स. अच्छा, Ibrahim, I just want to add one thing, like कुछ participants से हमें कुछ questions मिले, very important questions regarding research. So like how about हम kind of time को divide कर लें. In the start I ask you that questions and you can answer accordingly, और फिर उसके बाद हम question answer kind of end में रख ले. So that is totally up to you how. मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेता हूँ रिसर्च के लिए. मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी पता भी हैं कि ये लोग क्या करते हैं. Okay, और that's great. मैं थोड़ा बहुत मैं रिसर्च पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. लाइक मुझे थोड़ा सी स्क्रीन भी शेयर कर लेना मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूंगी लाइक हाउ टू अप्लाई समवेयर, लाइक में किस तरह लोग रीच आउट करते हैं फैकल्टीज को. ओके, ग्रेट, थैंक यू. ऑप्शन भी दे देना मुझे, और लास्ट में फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे तो फिर करेंगे. सो मोस्टली अंडरग्रेड्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ना, लाइक लॉट ऑफ पीपल हियर आर अंडरग्रेड्स, तो वो कहते हैं कि यार हमें रिसर्च पोजीशन चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च पोजीशन इज लाइक मोस्टली फॉर सर्जरी. Like if anybody wanna come to the US or research अपना career सर्जरी में बनाना चाह रहा है, and he have to come here, और उसको 1-2 साल
जो है सर्जरी में रिसर्च में काम करना पड़ता है, पब्लिकेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऑल दैट स्टफ होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये बेसिकली ये जो है आप मतलब ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके स्टेप 2 स्कोर्स कम है, यू वांट जॉइन इंटरनल मेडिसिन, और इसके बाद जो है आपके अलावा कुछ सीवी में रेड फ्लैग्स है, तो आप क्या करते हो कि आप यूएस में किसी तरीके से आते हो रिसर्च पोजीशन पे ऑन J1 वीजा और काम करते हो, सो यू माइट हैव सम चांस टू गेट रेजिडेंसी। सो मोस्टली लोग जो है ना वो लाइक मोस्टली मैंने यहीं पे ही देखा है कि लाइक मेरे साथ जो कॉलीग्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे आर लाइक 3 ईयर 4 ईयर ग्रेड्स, और उनकी सीवीज में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ग्रेजुएशन बहुत पुराना होता है तो वो लोग आ रहे होते हैं। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, भी आप लोग बहुत सपोज अभी 4th ईयर है, फाइनल ईयर में है, ये सपोज अभी हाउस जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको अभी क्या फोकस करना चाहिए राइट नाउ? मैं तो ये कहूँगा कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 2 दे दें, स्टेप 3 इन रोटेशंस के लिए यूएस आ जाएं, और साथ साथ जो है मैच में अप्लाई कर लें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव लाइक सम एक्सपीरियंस इन रिसर्च। हमारे आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि लाइक रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट ले रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्ट ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक दे आर गेटिंग सम लाइक एक्सपीरियंस इन लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, इधर वो कोई भी रिसर्च हो, लाइक वो बेसिक्स क्रॉस सेक्शनल है, केस रिपोर्ट्स हैं, नाउ डेज तो मैंने देखा है कि लाइक सीडीसी पे कर रहे हैं, लाइक मेटा एनालिसिस पे कर रहे हैं। सो हर एक लाइक रिसर्च का अपना एक प्रोटोकॉल और डिफरेंस होता है, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चीज़ है कि लाइक यू आर गेटिंग सम स्किल्स, सो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट लाइक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, वो कह रहे कि यार मैं आना चाह रहा हूँ रिसर्च पोजीशन के लिए, तो मैंने कहा यार इसमें यानी ये लाइक इस डजंट मेक एनी सेंस कि यार आप लोग पहले आओ, स्टेप 3 करो, रोटेशंस करो, मैं साइकिल में अप्लाई करो, देन पुट रिसर्च एज अ बैकअप ऑप्शन। लाइक डायरेक्टली रिसर्च में आने के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे नज़दीक, अनलेस यू आर लाइक लाइक कॉम्पिटिटिव स्पेशलिटीज में आना चाह रहे हैं, सपोज सर्जरी में कर रहे हो। in nowadays I think neuro is also going to be competitive in the sense कि neuro वाले सिर्फ और सिर्फ dedicated लोग देखते हैं, so if you have some good scores only neuro based publications and you have some like good rotations in the US connections means कि आपके programs में senior residents हैं, उस programs में neuro वालों में वो आपको vouch कर रहे हैं, then it's very good for you. But other than that, like if you are a family medicine pediatrics applicant, I think इसके लिए आपको जो है ना रिसर्च पोजीशन ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है ज़्यादा, यूएस में आके जो है ना रिसर्च पोजीशन करने के लिए जो है ना आपने हाथ पाँव मारने की जरूरत है, क्योंकि फैमिली मेडिसिन और पीरियड्स में इतना जो है इसकी अहमियत नहीं होती। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक स्पेशलिटीज पे डिपेंड करता है, आपकी सीवी ओवरऑल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स है आपके स्कोर्स पे, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पे, डिफरेंट रेड फ्लैग्स हैं आपके सीवी के अंदर, तो सारे के सारे उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सो रिसर्च पोजीशन का जो है ना लाइक इसकी ये सिग्निफिकेंस होती है। अदर देन दैट डिपेंड करता है कि आप अगर मेरी तरह हो कि लाइक सपोज स्टेप 1 2 दे दिया, आप यूएस आए, रोटेशंस कर लिए, और आपके दिमाग में यहाँ पे मैंने यूएस के अंदर ही रहना है डायरेक्ट, और रोटेशंस के बाद डायरेक्ट मैच में अप्लाई करना है, अगर मैच ना हो तो मेरे रिसर्च पोजीशन कंटिन्यू करना है, तो उसी टाइम ढूंढ ली तो चलो वो अलग बात है लाइक। और मोस्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यार रिसर्च पोजीशंस जो है ये पेड होती हैं अनपेड होती हैं। सो नाउ डेज लाइक मेयो क्लिनिक मोस्टली क्या करता है कि आपको फर्स्ट ईयर जो है वो अनपेड दे रहा होता है, अनलेस वेरी स्पेसिफिकली कुछ डॉक्टर्स के पास फंडिंग होती है, वो भी डिपेंड करता है, भी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ड्यू टू रीसेंट पॉलिसीज बहुत से फंडिंग्स जो है ना वो कट हो चुकी हैं, तो वो आपको स्टार्ट में स्पॉन्सर नहीं करते। सो यू हैव टू बी लिविंग बाय योर ओन। सो आपने ये माइंड में रखना होता है कि लाइक हम लोगों को जो है बेसिकली अपने आप को लाइक खुद सर्वाइव करना होता है फर्स्ट ईयर मोस्टली, इवन सम टाइम इट्स मोर देन 1 ईयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सी कॉलीग्स को देखा है वो जो 1.5 ईयर से वो अनपेड रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं। बट सम ऑफ द पीपल आल्सो माइट गेट रिसर्च एज अ पेड, डिपेंड्स अपॉन देयर डॉक्टर जिनको उन्होंने लाइक रीच आउट किया, उनके पास जो है फंडिंग्स अवेलेबल हैं, देन दे माइट गेट समथिंग लाइक दैट, तो उनको मिल जाती है। बट इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस, इट्स ऑल अबाउट रिकमेंडेशंस, इट्स ऑल अबाउट लाइक डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये सब यहाँ पे ये बातें होंगी हैं। अब कहते हैं कि ये लोग हम लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में रिसर्च का क्या सीन है, लाइक कितनी इंपॉर्टेंस है, यूएसएमएलई के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली रिसर्च का ये सीन है कि आपके एरास एप्लीकेशन के अंदर, इससे पहले लास्ट ईयर तक ये होता था कि लाइक यू हैव टू बी पुट एक्स्ट्रा आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं आपने काम किए हुए डालते जाओ नंबर ली। लेकिन इस ईयर से ये कर रही है लोग की लिमिटेड स्कॉलरली एक्टिविटीज डाल रहे हैं, यू कैन मैक्सिमम ऐड आई थिंक 10, तो उसके अंदर भी आपके जो है ना हाई यील्ड प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे 1 2 3 जो है मतलब ऑथरशिप की बेस पे, लाइक आप प्राइमरी ऑथर और सेकेंडरी ऑथर मतलब कि उस तरीके से जो है आपने ऐड करना है, और मैक्सिमम नंबर जो है ना इस साल से वो 10 होगा स्कॉलरली एक्टिविटीज का। उसके अंदर पे आप पोस्टर प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं 2 3,
आपकी फुल टेक्स्ट पब्लिकेशंस भी हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं आपके पास। मैंने एक डॉक्यूमेंट भी रेडी की, तो वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, लाइक व्हाट दे गोना एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन स्कॉलर एक्टिविटीज, जो इस साल मैच में अप्लाई कर रहे हैं या अगले साल मैच में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या सेक्शन जो है इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो उस पर थोड़ा सा जो है ना एक डॉक्टर्स ने हमें गाइड प्रोवाइड की थी, लाइक वो डॉक्यूमेंट एक पेज का उसको आप पढ़ लें, लाइक व्हाट दे गोना एक्सपेक्ट फ्रॉम यू लाइक इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा जो है बेसिकली एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जब अप्लाई करते हैं लोग, बहुत से लोग रिसर्च पोजीशंस के लिए, हमारे पास इसके अलावा एक्सपीरियंस क्या चाहिए होता है और डॉक्टर्स क्या देख रहे होते हैं रिसर्च पोजीशन के लिए, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि अभी मैं रियलिटी में मतलब रियलिटी बेस्ड में चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने देखा है कुछ लोगों के पास एक दो पब्लिकेशंस थी, उनको रिसर्च पोजीशन मिली है, किसी के पास 50 भी हैं, उनको नहीं मिली हुई। तो ये सब वेरी करता है आपके पास। आपने डिफरेंट लोगों को रीच आउट किया, सपोज मार्च में सपोज हम लोग जा रहे हैं अभी, तो मैच हॉकिंग जो लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के पास स्पॉट्स रह गए, तो बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो रिकमेंडेशंस देते हैं अपने जूनियर्स की, अपने फ्रेंड्स की, तो वो स्पॉट्स फिल हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से स्पॉट्स खाली रहते हैं। तो आपके साथ बहुत से जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक रीचिंग आउट टू द फैकल्टी, और पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होते हैं। सो उनको बेसिकली वहाँ पे जो है वो रेंडमली कोई भी स्पॉट मिल जाता है, तो वो उस पे जो है ना पहले उनको इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली डॉक्टर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि यू आर डेडिकेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू हैव डन विद लाइक योर स्टेप 1 एंड 2 बाय द एंड ऑफ योर लाइक फाइनल ईयर, आपने ग्रेजुएट हो गए, स्टेप 1 2 किया हुआ है, तो आप उस इंटरव्यू में बता रहे होते हैं कि यार मैं आपके साथ रिसर्च करूंगा, मेरे पास टाइम है, मैं आपके प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं वो स्टेप 2 की तैयारी साथ साथ जो कर रहे होते हैं, वो रिसर्च खास टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो डॉक्टर्स को बहुत लाइक अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूर इंटरव्यू। आपके पास अगर स्टेप 1 2 हो चुके हैं आपके पास, तो वो अच्छी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे एक्सपेक्टिंग कर रहे थे कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए रिसर्च में। यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो बहुत डिफरेंट भी होती है। सपोज ओरिजिनल स्टडीज होती हैं, यहाँ पे जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चनियर्स के लिए, वो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास होते हैं। इसके अलावा जो है आप एनालिसिस करते हो, उसके लिए बायोस्टेटिशियंस होते हैं यहाँ पे, वो आपके साथ हेल्प भी कर रहे होते हैं। सो ये नहीं होता कि यार आपने प्रो रिसर्चर बन के आना है अपने कॉलेज से या अपने कंट्री से, और यहाँ पे जो है अपने रिसर्च में जो काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है स्टार्ट में, साथ साथ वो सीख रहे होते हैं, साथ साथ वो अप्लाई कर रहे होते हैं इस नॉलेज को, और आपके कोलीग्स होते हैं वो आपका साथ दे रहे होते हैं। सो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कोई प्रो रिसर्चर बन के आना है अपने कंट्री से, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। और अभी मैं इवन मैं आपको ये बताऊँ, इतना फनी लगेगा आपको कि मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे 2 सालों से रिसर्च फेलोज हैं, तो वो मुझे कहने कि यार मुझे तो मेटा का भी नहीं पता इतना अच्छे तरीके से, लाइक और हमारा जो है ना, तो लाइक इतना ये नहीं होता कि यार होम कंट्री में जो है ना आप बहुत बड़े रिसर्चर हो, और यहाँ पे जो है ना बेसिकली वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो आप ओरिजिनल स्टडीज पे काम करते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम करते हो, सपोज अब सपोज जहाँ भी जिस आर्टिकल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस आर्टिकल पे सपोज एक हमारे पेशेंट साइड से उसमें जो टेस्टिंग होती है वो ओरिजिनल स्टडी है, सपोज इट्स मोर देन लाइक 5-6 करोड़ की वो स्टडी है सिंपल, तो उस पर इतना पैसा लग रहा है, तो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो है आप लोगों के ये मेटा एनालिसिस, सीडीसीज और इन चीज़ों से रिलेटेड। तो इसमें इससे कुछ भी एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं चाहिए होता। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अगर एवरेज 7-8 पब्लिकेशंस भी इट्स वेरी गुड, समटाइम इट्स 4-5, बट इफ यू आर डन विद स्टेप 1 एंड 2, आप रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन इट्स वेरी गुड कि आपको बेसिकली उन चीज़ों को कवर करना आना चाहिए, इंटरव्यू में आपको बताना आना चाहिए कि आप पूछना है डॉक्टर से किस तरह कमिटमेंट करनी है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नो, कि मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि यार आप आपने डॉक्टर्स को किस तरह परसीव करना है कि आप डॉक्टर्स के लिए बेस्ट फिट हो। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बट दे डोंट नो हाउ टू कन्विंस अदर पीपल, तो उनका कुछ भी नहीं होता फिर। सो अगर आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं बट यू नो हाउ टू कन्विंस, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये बेसिकली किस तरह रीच आउट करना है डॉक्टर्स को, किस तरीके से आपने करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है नॉलेज है, रिसोर्सेज है या नहीं है। अब यूएस के अंदर हार्वर्ड है, बेथ इसराइल, हार्वर्ड जो है वो रिसर्च पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं, बट मोस्टली नाउ डेज लोग कहते हैं कि थोड़ा हार्ड है मिलना। मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार वीजा के लिए जो है ना थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहे हैं आजकल, इवन J1 पे भी। सो स्टिल लाइक यू हैव टू अप्लाई एनीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइक करंट स्टेटस। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लीवलैंड क्लिनिक जो है ना बहुत लिमिटेड स्पॉट्स रखता है, और वो पेड रखता है लेकिन लिमिटेड रखता है, और इस साल से वो जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंडेशन वालों कुछ को दिए है, बाकी सब उन्होंने ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट वालों को दिया हुआ है। यूपीएमसी ने जो है ना ऑलरेडी वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है, वो भी J1 अभी दे रहा था, 20 सालों से नहीं दिए ज़्यादा। यू कैन अप्लाई इन स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड,
क्लीवलैंड क्लिनिक, मेयो क्लिनिक, इसके अलावा जो है टेक्सास के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, बट अगेन डिपेंड करता है। हमारे केपी के अंदर ये चीज़ें बहुत कम हैं। अब पंजाब के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इल्यूमिनाई ज़्यादा है, डाउ की है, किंग एडवर्ड्स की है, तो उनके बहुत से मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे वो उनको इजली मिल जाती हैं बिकॉज ऑफ लाइक दे हैव फैकल्टी हियर इन प्रोग्राम, तो वो उनको सपोर्ट कर रही होती है, वो उनके साथ रिसर्च कर रही होती है। तो सारी सारी बात यहाँ पे रिसर्च की यहाँ से शुरू होती है कि वो क्यों सपोर्ट कर रही होती है फैकल्टी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स उनके साथ वो फाइनल ईयर से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं। अब मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं सपोज फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स के, मेरे अपने कार्डियो के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं सपोज, तो मैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु रैंडमली रीच आउट टू मी। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कनेक्शंस। कनेक्शंस कैसे डेवलप होते हैं बेसिकली, ऐसे तो नहीं होते कि भाई आपने एक दिन मैसेज कर ली और भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और बस बात खत्म। तो कनेक्शंस के लिए आपके पास जो है ना शुरू से कुछ चीज़ होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक फिनोमेना इन यूएस। जब मैं यूएस में प्रोफेशंस के लिए अप्लाई कर रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल यही चाहिए होती है कि आप क्या ऑफर कर रहे हो दूसरे बंदे को। मोस्टली यहाँ पे आप डॉक्टर्स के साथ काम करते हो, रिसर्च पे काम करते हो, रिसर्च स्किल्स हैं आपके पास कुछ ऐसा लाइक स्किल है जिसकी वजह से डॉक्टर आपसे इम्प्रेस होता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आपके रेजिडेंट्स के साथ आप काम करते हैं, दे वांट टू गिव यू सम लाइक सपोर्ट थ्रू लाइक ऑब्जर्वरशिप्स में हेल्प आउट करते हैं आपके साथ, आपके आर्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, क्योंकि हर एक आर्टिकल प्रेजेंटेशन की भी अपने एक बहुत एक्सपेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि लाइक रैंडमली आप जाओगे तो करोगे। तो इसके अलावा और बहुत सी स्कॉलरली एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर आपको सपोर्ट किया जाता है, आपकी मेंटोरिंग की जाती है, आपके पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू की जाती है, आपको लाइक इंटरव्यूज में तैयारी करवाई जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कनेक्शन इस तरह डेवलप होते हैं। सो आप फाइनल ईयर से आप रिसर्च सीख के आ रहे हो तो आपको यही फायदा हो रहा है कि लाइक डेफिनेटली आप रेजिडेंट्स के साथ काम कर रहे हो, यूएस में डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, तो कल के वो आपके लिए वॉश करते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लिखते हैं। तो दिस इज ओनली वे ऑफ योर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपिंग कनेक्शंस। तो एक मोस्ट कॉमनली बात ये होता है। अब मयो में मुझसे पूछते हैं कि आप हम लोग कैसे अप्लाई करें। सो सपोज शबीर मुझे स्क्रीन शेयर करने दो थोड़ा सा। Okay. Misbah, can you do that, please? जी इब्राहिम, हेलो क्या हम स्क्रीन आपको शेयर कर सकते हो? आप ट्राई कर लें। ओके, लेट मी ट्राई। आ रहे नजर? जी जी आ रहा है। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाऊं सपोज सपोज ये मेरे क्लिनिक फैकल्टी प्रोफाइल है। हर किसी को नजर आ रहा है प्रॉपर्ली? स्क्रीन शेयर की है मैंने यहाँ पे। जी जी आ रहा है। ओके, सपोज ये मेयो क्लिनिक की फैकल्टी है, अगर मैंने फैकल्टी प्रोफाइल लिख दिया, अब यहाँ पे हर एक फैकल्टी जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ दी हुई है, ठीक है, ए से लेके जेड तक, इसमें हर फैकल्टी के नेम्स हैं यहाँ पे। अब सपोज मैं रैंडमली एक अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे किसी फैकल्टी को ओपन करता हूँ, ये है डॉक्टर एंडी एब्रिल। हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक विच वन, यहाँ पे इसने सब कुछ बताया हुआ है मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। स्टेमिक स्क्लेरोसिस पे काम कर रहा है, वेस्कुलाइटिस पे काम कर रहा है, सारा का सारा। तो यहाँ पे इसकी मेल भी दी हुई है साथ। अब डिपेंड करता है कि आपने रीच आउट करना है फैकल्टीज को किस टाइम पे करना होता है, ये मैटर करता है मोस्टली। आपके पास स्टेप 1 2 कवर है, अगर आपके पास सीवी के अंदर आप आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक अगर पब्लिकेशंस मौजूद हैं, देन डेफिनेटली दे गोना सी योर रेज्यूमे। आपने सीवी अटैच करनी है साथ प्रॉपर्ली, और आपने मेल लिखना है, मेल पर्सनलाइज मेल होना चाहिए। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक मेल चैट जीपीटी को दे देते हैं, इस पे मुझे मेल लिखते हो बस, और सिंपल सा मेल होता है, और वो बहुत स्टूपिड मेल होता है, कोई डॉक्टर्स पढ़ते भी नहीं है ज़्यादा तरीके से। तो आपने यहाँ पे देख लिया किसने एरिया ऑफ इंटरेस्ट किया है, इस एरियाज पे काम कर रहा है। यू वर्क ऑन सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, तो अगर आपके पास कुछ पब्लिकेशंस हैं जो इससे मिलती जुलती हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो आपने उस मेल के अंदर लिखना होता है कि लाइक मैं ये डॉक्टर हूँ, मैंने ये स्टेप्स दिए हुए हैं, अभी मैं करंटली पब्लिकेशंस भी की हैं, मैंने आपका काम देखा है, आई रियली लाइक योर वर्क एंड आई रियली वांट टू वर्क विथ यू ऑन योर प्रोजेक्ट्स। तो अब देखो, अब अपने गोल्स को उनके साथ अलाइन कर रहे हो, तो इस तरीके से जो वो आपके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है अप्लाई करने में। तो आपने जो है ना बेसिकली ये मेल्स लिखनी होती हैं डिफरेंट, और इट अगेन डिपेंड्स अपॉन लक। सब प्राइमरी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन जो है बेसिकली वो
किसी भी टाइम पे जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकता है, बट अगेन इट्स नॉट 100% कि वो आपको जो है ना कुछ भी चीज़ दिलवा सकता है। बट सेकेंडरी इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप लोग जो है ना मेलिंग कर रहे होते हो, मेलिंग। समटाइम मैंने बहुत से लोगों को देखे जिन्होंने 1 साल मेल किए, 2 साल भी मेल किए, तो वो उनको वो मतलब कि मिलता है, किसी को 1 हफ्ते बाद भी मिल जाता है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन टाइम लाइन। मोस्ट ऑफ द रिसर्च पोजीशन जो ओपन होती हैं वो मार्च में ओपन होती हैं, अप्रैल में होती हैं, मई में होती हैं मोस्टली, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना वो ऑलरेडी मैच एप्लीकेंट्स जो है ना वो वाइंड अप कर रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी अप्लाई लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है ना मायो क्लिनिक जो है, सपोज दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सपोज आप लिखते हो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेसिकली क्या है। सपोज ये एक रिसर्च फैमिली मेडिसिन के अंदर जो है वो रिसर्च ट्रेनिंग एप्लीकेशंस हैं, रिसर्च ट्रेनिंग एप्लीकेशन है। आपने जो है ना ये इनकी ये ऑर्गेनाइजर है जो जिनको आपने भेजनी होती है इसकी इनकी मेल पर, बेसिकली सारी फॉर्म फिल करके जो है ना आपने क्या कर दिया, सपोज भेज दिया टुवर्ड दैट डिपार्टमेंट। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। मोस्टली केसेस में अपनी सिचुएशंस को देख के अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंडिंग अवेलेबल होती भी है नहीं भी होती है, आपने अनपेड भी देना होता है, और सारा प्रोसेस जो होता है वो रैंडमली हैफेजटली होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ चांस, ऐसा नहीं है कि आपको 100% जो है ना आप प्लान्स बना रहे हो डिपेंड कर रहा होता है। और यहाँ पे आप देखो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, सपोज इन स्कोर्स दिए हुए हैं, हु पास्ड अप टू विद 250 और हायर्स, ग्रेजुएट विद इन लास्ट 5 years। प्रोग्राम 6 मंथ का होता है, सेल्फ फंडेड होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, सपोज कि हमारे जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार रिसर्च पोजीशन होती है बेसिकली इस तरह, एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अंडर ग्रेड्स के लिए रिसर्च इलेक्टिव प्रोग्राम भी होता है। सपोज आप यहाँ पे आते हो 6 मंथ जो है ना J1 पे रिसर्च पे काम करते हो, फिर वापस चले जाते हो अंडर ग्रेड्स के अंदर ही यहाँ पे होता है। बस मोस्टली हमारे केपी में, इवन पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो आप थोड़ा जाएं मायो क्लिनिक की वेबसाइट पे, मायो क्लिनिक फैकल्टी कैरियर्स, मायो क्लिनिक विजिटिंग में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। तो आप जाते हो यहाँ पे यूएस में आते हो, रिसर्च पे काम करते हो 6 मंथ। मोस्टली मैं ये बता दूं कि दिस इज अनपेड, यू टू लाइक पे बाय योर ओन, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके, आपने अपना खर्चा खुद का उठाना होता है। तो आप जाएं इनकी वेबसाइट पे सर्च करें, बेसिकली ये फार्म्स होते हैं डिफरेंट सेल्फ फंडेड, सारी की सारी जो है ये 6 मंथ का जो है ना ये अनपेड सेल्फ फंडेड प्रोग्राम होता है। ये बेसिकली मुझे भी इसका आइडिया नहीं था कि अंडर ग्रेड्स में चीज़ें होती हैं लाइक, बट यहाँ पे मेरी एक दोस्त है वो काम कर रही है नेदरलैंड से, वो आई हुई है, वो अंडर ग्रेजुएट है, वो फाइनल ईयर की है। तो वो अभी 6 मंथ उसने हमारे साथ गुजारे हैं और वो अभी मूव कर रही है। उसने मुझे बताया कि इस तरह मैंने अप्लाई किया था और मुझे जो है ना मिली थी ये फॉर 6 मंथ जो है ना रिसर्च J1 पे। तो आप भी इस तरह कर सकते हो, अंडर ग्रेड्स में आपके पास 6 मंथ के लिए आ जाओ यहाँ पे। तो अब मिड स्कूल की बात है तो आप रैंडमली अप्लाई करोगे, ऐसे नहीं है अभी स्लो बेस वाली बात नहीं होती इसके अंदर, प्रॉब्ली ये हर बंदा आ सकता है। बट शी इज फ्रॉम नेदरलैंड, सो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी पार्ट होते हैं इस बड़े इंस्टीट्यूट्स का। बट आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन, बट यू हैव टू एक्सप्लोर, इट्स नॉट अबाउट लाइक आपको जो है ना रैंडमली चीज़ें मिल रही होती हैं, आपने अपनी तरफ से रीच आउट करना होता है लोगों को, उनके साथ जो है ना बात करनी होती है, लिंक्डइन पे करना होता है। तो और दूसरी बात है कि ये पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है एग्जैक्टली, लाइक यूनिवर्सिटी फीस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन जो है ना पॉलिसी पे। अब उनकी स्कूल की पॉलिसीज है कि आपने रिसर्च करनी है, आइदर अपने प्रोजेक्ट करना है, जहाँ से भी करना है तो आपने करना है, वो उनका स्कूल का डिज़ाइन इस तरह होता है करिकुलम का। हमारे करिकुलम का डिज़ाइन बड़ा जो है ना फजूल होता है, जो उनका, हमारा तो बिल्कुल भी लाइक स्ट्रक्चरलेस चीज़ें हैं हमारे पास। तो बट मोस्टली ये कि बस फ्यूचर के लिए जो है ना 6 मंथ, भाई पाकिस्तान से चले जाओ, क्या क्या जाता है किसी का। हम लोगों ने कौन सा वहाँ पे जो है ना सारा दिन काम करना है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो हम लोग सारा दिन, वैसे भी हमने पढ़ना आगे 3 महीने में ही होता है, बहुत से स्टूडेंट्स 3 महीने में पढ़ते हैं प्रेप्स के अंदर, मुझे पता है हमारे लोगों का। सो आप लोग जो है बेसिकली जाओ यहाँ पे जो है ढूंढो, अगर आपके पास पैसा है तो ये काम करो, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करो, तो एक बेस्ट चीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी कि मोस्टली लिंक्डइन पे अक्सर आ रहा होता है मायो क्लिनिक करियर के नाम से। मायो क्लिनिक जो है ना वो अपने अटेंडेंस तो इशू बन जाता है, हाँ इस पे बाद में बात करते हैं। मोस्टली ये होता है कि मायो क्लिनिक करियर की जो वेबसाइट है, आप जाएं गूगल पे टाइप करें मायो क्लिनिक करियर्स, मायो क्लिनिक करियर में अंदर जो है ना बेसिकली वहाँ पे सर्च आउट करेंगे रिसर्च ट्रेनिंग्स के लिए एक फॉर्म अवेलेबल होता है कि आप फॉर्म फिल कर लें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पुट कर लें और सबमिट कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स आता है कि अगर उनके पास स्पॉट्स अवेलेबल हो तो वो इंटरव्यू दे देते हैं।
तो वो बेसिकली जो है ना वो लाइक सिंपल आप जो है ना जॉब के लिए जैसे बंदा अप्लाई कर रहा होता है, सो यू कैन गो, यू कैन अप्लाई देयर एंड यू कैन जस्ट वेट फॉर योर लक। सो अगेन डिपेंड करता है, बट मोस्टली करंटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि यू हैव टू गेट सम रिसर्च स्किल्स, इधर कुछ भी रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए जहाँ से भी आप सीख रहे हो, डजंट मैटर। आप मेटा एनालिसिस सीख रहे हो, सीडीसी सीख रहे हो, आप जीबीडी सीख रहे हो, सो डिपेंड करता है। बाकी रिसर्च एक्सटेंसिव नहीं चाहिए होता मोस्टली, बहुत से लोगों के पास मैंने बताया कि कुछ लिमिटेड पब्लिकेशंस भी होती हैं उनको मिल जाता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होती हैं उनको नहीं मिलता। तो अगेन ये लक पे डिपेंड करता है, कनेक्शंस पे डिपेंड करता है, हाउ दे आर अप्लाइंग, हाउ दे आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया कि पर्सनलाइज मेल लिखना है आप लोगों ने, ऐसा मेल लिखने के जो सामने वाले बंदे के साथ अलाइन कर पाए। आप इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर को क्या लिख रहे हो, ऑर्थोपेडिक रिसर्च अगर आपने की है, सर्जरी की रिसर्च की है, सपोज कार्डियो वाले को आपने लिखा हुआ है कि यहाँ भी मैंने ब्रेन की रिसर्च की हुई है सपोज, या मैंने जो है मतलब किसी ऐसे पार्ट की हुई जो उसके साथ अलाइन नहीं कर रही, तो वो आपको क्यों ले। तो अगर आपने अपने आप को लाइक सेल करना होता है, यार मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ काम करने में, मेरे ये कॉमन गोल्स हैं, तो काइंडली वी कैन वर्क टुगेदर। तो सारी बात इस तरह होती है। जिस बंदे की और मेरे बंदे के गोल अलाइन नहीं कर रहे होंगे, फिर मैं क्यों उस बंदे को लूंगा। So you have to be like play very smartly for applying for these research positions if you don't have any connections in the US. So ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मोस्टली ये चीज़ होती है। बाकी रिसर्च स्किल्स आपकी अपने हद तक होती हैं कि आप क्या सीख रहे हैं करंटली। यहाँ पे ये चीज़ इसके इम्पोर्टेंट होती है कि सपोज आपके सीनियर्स हैं किसी भी यूएस प्रोग्राम्स में, इवन कोई भी स्टूडेंट बंदे, अभी मैं देखता हूँ बहुत से लोग ग्रुप्स में एक्टिव होते हैं, इवन पंजाब की मैं बात करूँ तो उनके बहुत से सीनियर्स ना भी हों, दूसरे कॉलेजेस में उनके फ्रेंड्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं जिनके साथ रेजिडेंट्स यूएस के अंदर होते हैं, वो रिसर्च पे उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो उनके साथ वो हेल्प आउट कर रहे थे प्रोजेक्ट्स में। बाकी यहाँ पे मैं बात क्लियर करना चाहूँगा, हर रेजिडेंट भी अच्छा नहीं होता यूएस के अंदर, वो सब आपको यूज भी करेंगे, ऐसी बात नहीं होती। सो ट्राई टू बी लाइक वर्क बैलेंसली, जो है ना आपने बैलेंस के साथ काम करना होता है। लाइक उनके साथ आर्टिकल पे काम कर लिए आप, उन्होंने आपके साथ काम कर लिया, बाद में वो आपको बूस्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यू हैव टू फिगर आउट कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो सोच समझ के काम करें, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि यूएस के अंदर रेजिडेंसी किसी को मिल गई है, मैच मिल गई है, तो वो बंदा बहुत बड़ा सुपर बंदा है, वो आपको भी कल को आपको भी मिल जाना है। सो वो आपको भी पता होगा, आपके पास भी रिसर्च मैच मिल जाएगा कल को, लेकिन यू हैव टू बी मोरली ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए जो आपके साथ जो है ना मतलब कि प्रॉपर गाइडलाइन के साथ काम करें, आपका ख्याल रखें, आप उनका ख्याल रखो, ऐसा नहीं होता। सो इसके अलावा बाकी मोस्टली जो क्वेश्चंस करते हैं लोग के हम लोगों की रिसर्च पोजीशन के अलावा, या एग्जैक्टली चर्च में मैं आंसर्स देख रहा हूँ, मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि लाइक अनपेड होती हैं स्टार्ट में, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी जरूरी नहीं होता, बट योर टाइम लाइन इंपॉर्टेंट, योर वे ऑफ राइटिंग, रीचिंग आउट टू डिफिकल्टी मैटर्स अलॉट। कुछ अभी इंस्टीट्यूट्स के जो है ना लाइक डॉक्टर्स के मेल्स अवेलेबल नहीं होते ओपनली, मेयो क्लिनिक बहुत ओपनली अवेलेबल है पोर्टल के अंदर, बट इफ़ यू कैन गो ऑन लाइक पबमेड, आपने देख लिया बहुत से डॉक्टर्स हार्वर्ड की जो है ना वो पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं, पबमेड के अंदर कोई भी आर्टिकल निकाल लिया, उसके नीचे आर्टिकल्स डॉक्टर्स के सारे नेम दिए होते हैं, एफिलिएशंस दी होती है, मेल्स दी होती हैं, वहां से मेल पकड़ो, उस आर्टिकल की जो है ना एक अच्छी सी उस डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन देखो, उस डॉक्टर को मेल करो, भाई मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ लिया है, ओ माय गॉड दिस वाज सो इंप्रेसिव, आई रियली लाइक दैट। सो यू हैव टू लाइक ट्राइंग टू रीच आउट टू दैट पीपल। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक रीचिंग आउट टू द पीपल। आइदर बहुत से लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, 100 में से एक बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। ये बात नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार आपको हर बंदा रिप्लाई देगा और हर बंदा जो है ना रिप्लाई नहीं दे रहा, भाई छोड़ो बस हिम्मत हार जाओ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आई हैव सीन हियर पीपल जो 200 सालों से काम कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनको मिल जाती है चीज़ें, बट इट डिपेंड्स अपॉन लाइक योर कंसिस्टेंसी एंड योर करेज कि तुम लोग जो है ना कितना एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को। हम लोगों की जनरेशन जो है ना वो क्या करती है कि भाई 2 दिन करती है, तीसरे दिन बोलती है यार कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, बस बात खत्म। तो इट्स नॉट लाइक दैट। So you have to be like very active and you have to be like approach to the everybody. LinkedIn पे बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, एक रोटेशंस ऑब्जर्वरशिप्स के लिए लोग बोलते हैं कि यार हम लोगों ने अप्रोच करना है। चलो वो यूएसएमली वाला एक वो अलग टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा बातें अलग से की जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये मैं रिसर्च की इसलिए बता रहा हूँ बार बार किया है। रिसर्च पोजीशन जो है ना बेसिकली बेनिफिशियल भी है, बट इसकी टाइमलाइन मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, किन लोगों को ज़रूरत है वो मैटर करती है। और जो अनमैच चाहते हैं मोस्टली सपोज फर्स्ट टाइम में, तो उनको चाहिए कि फिर वो सेकंड में अगर रिपोर्ट कर सकते हैं तो वो फिर अपने लिए उस टाइम से जो है ना वो शुरू कर लें। अच्छा इब्राहिम, एक फॉर एग्जांपल व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू समवन जो like who feel discouraged because they are struggling to find a research position,
या कोई आप रेड फ्लैग्स बता दें, यू नो, दैट कैन हर्ट इन एप्लीकेंट रिसर्च रिपुटेशन। तो आप थोड़ा सा इस पे तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दे, या ऐसे कॉमन मिस्टेक जो वाइल अप्लाइंग फॉर द रिसर्च पोजीशन या ड्यूरिंग द रिसर्च जर्नी वो हम अवॉइड कर सकें। रेड फ्लैग्स में सबसे पहले यही आता है कि आपकी अटेम्प्ट आई होती है, स्टेप 1 अगर फेल हुए, स्टेप 2 फेल है, आपका स्कोर्स नहीं है सपोज, तो वो फिर आप जो है ना बेसिकली कवर कर रहे होते हो, यूएस में आते हो, जेवर पे काम करते हो, रिसर्च पे काम करते हो, तो आपका चांस लग जाता है किसी चीज का मैच होने में, 1 साल ना, वो दूसरे साल लग जाता है, तीसरे साल लग जाता है। बट ये कि यू कॉन्स्टेंटली डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। ऐसी बात नहीं है, एक बंदा यहाँ पे भी आता है सपोज, उसी तरह जो है ना वो लाइक बैठ जाता है ऐसे, लाइक यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रीच आउट टू पीपल, हाउ टू आस्क फॉर एनीथिंग। तो डिपेंड करता है कि बंदा खुद भी कितना तेज है। यूएस के अंदर जो है ना एक चीज मैटर करती है, कम्युनिकेशन। आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आप जो है ना सही आपको बातें आती हैं, आपको रीच आउट करना आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आसमान से तारे भी तोड़ के लेके आते हो, अगर आपके पास इतनी चीजें भी हैं लेकिन आपको उनको एग्जीक्यूट करना नहीं आता, देन यू आर डम। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक रेड फ्लैग्स में यही आता है कि मोस्टली आपके पास जो है ना अटेम्प्ट्स आई हुई हैं आपके स्टेप्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अगर आप ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2 है 3 साल पुराना है, अगेन इट्स वंस अगेन लाइक अ बिट हार्ड। बट अगर आप यूएस आने ही आना है तो आप यूएस में यहीं पे आ जाओ सपोज। तो ये इस पे डिपेंड करता है। बाकी रिसर्च के लिए क्वेश्चन आता है कि लाइक हम लोगों का टॉपिक क्या है बेसिकली जिस पे आप काम करेंगे, तो अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक ही काम करें, नहीं जरूरी नहीं है। सपोज अभी हम लोगों ने, मैंने सर्जरी पे भी काम किया था अपने प्रोजेक्ट्स में। मैंने मैंने हर एक फील्ड पे जो है ना एक एक आर्टिकल मुझे जो भी मिलता था मैंने टीम्स के साथ काम किया सपोज। अल्टीमेटली मेरी साइकिल में ये नहीं होता, मेरी साइकिल में आप जब अप्लाई करते हो तो प्रोग्राम्स देखते हैं कि हाउ लाइक आपने किस तरह काम किया हुआ है, आपने टीम्स के साथ काम किया हुआ है, आपने क्या स्किल्स डेवलप की हुई हैं। तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी ये डिपेंड नहीं करता कि आपने जो है ना लाइक मल्टीपल एरिया में रिसर्च पे काम किया हुआ है। सो इट्स लाइक दैट। बाकी यहाँ पे जो है ना बेसिकली जब भी आप यहाँ पे आते हो तो ये ओके सो हाँ, यहाँ पे जितनी भी रिसर्च पोजीशन होती है मेयो क्लिनिक में मोस्टली अनपेड होती हैं, क्योंकि मेयो क्लिनिक वालों को परवाह नहीं है कि आप लोगों को पे करें या ना वो पे करें। डिपेंड करता है आपका डॉक्टर्स कैसा है। सपोज मेरा डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर तुम मैच नहीं है तो फिर हम तुम्हें शायद पे कर लेंगे, सोच लेंगे। लेकिन अभी तुम लाइक आई ज्वाइन इन जनवरी सपोज, तो मैंने कहा कि चलो मैं मैच अगर नहीं हो तो सपोज तो मैं मार्च के बाद जो है ना वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके यहाँ पे रिसर्च पे काम कंटिन्यू करूंगा। सो लकीली आई गॉट मैच, तो उसने बोला भाई जाओ अल्लाह हाफिज़, हम तुम्हारे साथ जो है ना गप नहीं लगाएंगे ज्यादा। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके डॉक्टर्स पे, आपके सो उन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो मोस्टली 1 ईयर तक अनपेड सकते हैं। अच्छा इब्राहिम, एक चीज़ ये भी बता दे कि लाइक इफ़ यू आर एडवाइजिंग इन आईएमजी स्टार्टिंग टुडे विद नो पब्लिकेशन, लाइक उसका बिल्कुल ज़ीरो पब्लिकेशन है, उसको रिसर्च का कुछ भी नहीं आता है, एंड ही इज़ एमिंग फॉर यूएस मिलियन यूएस। सो लाइक हाउ वुड यू बिल्ड दियर रिसर्च पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 12 months? लाइक उसका टारगेट क्या होना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द एंड ऑफ 12 months? सबसे पहले तो ये या क्लियर फॉर है। एग्जांपल आप क्या करते, फॉर एग्जांपल आपने यू आपका एक्सपीरियंस भी रहा, तो इन केस अगर आप ऐसे पोजीशन पे होते कि बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते, तो व्हाट वुड यू डू? देखो सब आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ा रही होती हैं। लेकिन मसला सारा यहाँ पे खड़ा होता है कि लाइक आप अकेले कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। रिसर्च इज ऑलवेज अ टीम वर्क। जब तक आपके पास टीम नहीं होती, सब वो 3 4 बंदे मिलकर काम नहीं कर रहे होते, आइडियाज फ्लो नहीं हो रहा होता, तो वो जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम सारा खड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि बेसिकली अगर आपके पास सपोज अपने हॉस्पिटल में जाएं, जो सबसे बेसिक रिसर्च होती है केस रिपोर्ट होता है, सबसे इजी होता है वो करना। अपने प्रोफेसर से बात करें, कोई यूनिक केस लें, उसको करने का तरीका सीखें। एक बंदा जिसने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है उसको बोले यार तुम हमारे साथ गाइडेंस करो, एक पेशेंट है, ये केस रिपोर्ट हम लिखना चाह रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, चलो आप मिलके काम करते हैं, आ जाओ। उसको पकड़ो, उसके साथ उसको लिखना शुरू करो, उससे रिव्यू करवाओ केस रिपोर्ट। तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज यू नो हाउ टू डू लिटरेचर, हाउ टू राइट अ डिस्कशन फॉर दैट केस रिपोर्ट। तो बेसिकली आपकी स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती है वहाँ से। उसके बाद अब आता है कि
आजकल जो है बहुत से वर्कशॉप्स भी होती हैं, मेटास की होती हैं, जीबीडी की होती हैं, सीडीसी की होती हैं। तो आपने लोगों से ओपिनियंस लेने की सबसे अच्छे परफॉर्म कौन करवा रहा है, सपोज ओपिनियन लो सब लोगों से, जो अच्छा करवा रहा होता है उसके साथ जो है ना उनके पास्ट एक्सपीरियंस देखो, जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है उनसे उनसे पूछो, फिर उसके बाद जो है ना वो आपने उनके साथ उनसे मेंटोरशिप ले लो, एक ही मेंटोरशिप ले लो, उनके साथ काम करो A to Z, उनसे हर चीज सीखो, बाद में उसके लिए को अपने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करो। और इसी तरह आजकल क्या होता है कि मोस्टली जो है वो मेंटोरशिप ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स, बहुत से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के। आउट ऑफ केपी एक्सप्लोर करो, जरूरी नहीं है केपी के अंदर ही आप देखो, पंजाब के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ जाओ, तो उनसे उनके साथ जो है ना कोलैबोरेट करो, उनके साथ रिसर्च पे काम करना स्टार्ट करो। अब मोस्टली मेरा सर्कल मोस्टली जो होता है, सपोज मैं केपी से अगर हूँ भी तो मेरा ऑल ऑफ और पाकिस्तान पंजाब में जाता है, सिंध के बहुत से मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। केपी के बहुत ज्यादा कम है मेरे पास, सिर्फ 3-4 लोग हैं जिनके साथ मैं मोस्टली काम कर रहा होता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, तो आप डिपेंड करते हैं कोलैबोरेट करने पे। और रिसर्च जो है ना ये इंडिविजुअल थिंग नहीं होती। और हमारे केपी के लोगों में और मोस्टली पंजाब में भी नहीं होता है कि हम बहुत से लोग बोलते हैं यार बस मैं आगे चला जाऊं, मैं ये काम कर लूँ दूसरा ना करे। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, यूएसएमएल सारा टीम वर्क होता है। True, Ibrahim. Thank you so much for explaining that really well. अच्छा, एक और जो एक बहुत कॉमन ऑलमोस्ट सबके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि देखिए हम या तो हम में से कोई ट्रेनी है, ट्रेनिंग रेजिडेंसी कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है फाइनल ईयर में है, हाउस जॉब कर रहा है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम हम यूसीमिली की जर्नी भी कर रहे होते हैं, फिर रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आते हैं, ऊपर से फिर हम रिसर्च पोजीशन का भी सोचते हैं। तो लाइक एट द सेम टाइम हम इन 3-4 चीज़ को किस तरह मैनेज करें? एक तो यूजुअली एक साइड पे, दूसरी साइड पे रिसर्च, फिर पोजीशंस एंड लुकिंग फॉर ऑब्जर्वरशिप एंड एवरीथिंग। सो ये लाइक हम इनको किस तरह मैनेज करना है? ये तो आपने देखा होगा कि जब मेरे हाउस जॉब चल रही थी मैंने क्या किया था। तो मैनेज तो करना पड़ता है आप लोगों को, ऐसा बात नहीं है। लाइक आपने अपने अब हर कोई तो आप जैसा नहीं होता ना, नहीं, ये तो आप मल्टीटास्किंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट पार्ट, मल्टीटास्किंग सीखनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ। आपने जो है ना सुबह घूमना भी है, आपने पढ़ना भी है, आपने प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रखनी है, आपने अपने फ्यूचर गोल्स को भी साथ टाइट रखना है, आपने फिजिकल हेल्थ को भी साथ टाइट रखना है, आपने अपने फन को भी साथ टाइट रखना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक, मैं उस दिन भी मैंने एक पोस्ट लिखा था कि यार इट्स नॉट अबाउट एग्जॉस्शन, कि बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं असेंबली को इंस्टाग्राम पे मैंने देखा पोस्ट डाले हुए होते हैं, और एक बिल्कुल एक वो सैड सॉन्ग साथ लगाया होता है, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं दिन रात लगे हुए, और पता नहीं वो लाइक इमोशनल हट हट क्लास किस्म के सॉन्ग के साथ। तो भाई इट्स नॉट अबाउट दैट। यूएसएमएल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी, इसको एंजॉय करना चाहिए, ये प्रोग्रेसिव थिंग है, 2-3 साल लेते हैं, स्टेप 1-2, अब जो 4-5 ईयर से स्टार्ट करते हो। बट यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्लान, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप स्टेप 1 कर रहे हो, साथ थोड़ा थोड़ा रिसर्च करो, वीकेंड पे रिसर्च करो। अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करो अपनी। अभी बहुत से लोगों को भी नहीं पता होता कि लिंक्डइन जो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वो कनेक्शंस उनके पास नहीं बने होते, वो जो लिंक्डइन पे जो रिक्वेस्ट को कनेक्शंस बोलते हैं अकाउंट्स को, तो वो कनेक्शंस नहीं बने होते। तो आपके पास जितने ज्यादा मेडिकल कनेक्शंस होते हैं, यू आर गेटिंग पोस्ट रिगार्डिंग करंट प्रोजेक्ट, लोग क्या कर रहे हैं यूएस के अंदर, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। सपोज रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बहुत से लोग कोलेब्रेशन के लिए पोस्ट कर रहे होते हैं लिंक्डइन पे। बहुत से डॉक्टर्स हैं यूएस के अंदर जो लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। वो बाद में रोटेशन के लिए, ऑब्जर्वरशिप्स के लिए बहुत से लोग पीडीएफ फाइल शेयर कर रहे होते हैं ऑब्जर्वरशिप्स की। सपोज डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंट जो मेरे साइकिल में काम आते हैं, वहां से उठाए कॉपी कर ली, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक बनाया हुआ डाल दिया, या हाँ भाई अगले साल में अप्लाई करूंगा, ही शायद मुझे जरूरत पड़ जाए। तो वो सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने पास पहले से तैयारी कर रहे होते हो। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक आप लोग किस में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो। हमारे लोग क्या करते हैं कि भाई हाँ देखा जाएगा, चलो यार अगले साल हमने वैसे भी अप्लाई करना है, उस उस तो बगूर उस पर फिलहाल। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार बात के लिए छोड़ देते हैं सारी चीजें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो, मैंने जब मैच में अप्लाई किया था तो मेरे पास मेयो क्लिनिक कुछ भी नहीं था मेरी सीवी के अंदर। मेरी सीवी के अंदर मैंने रिसर्च पोजीशन जब मुझे मिली थी तो वो सितंबर के अंदर, मैंने अक्टूबर के अंदर मिली थी जब मैंने रास एप्लीकेशन सबमिट कर ली थी। बट स्टिल मैंने जो है ना उसके अंदर सिर्फ नीचे एक्सपीरियंसेस में कुछ भी नहीं डाला था कि मैं काम करूँ, बट एक्सपीरियंस सेक्शन में मैंने ये बोला था कि यार आई मे बी स्टार्टिंग रिसर्च पोजीशन हियर एट मेयो क्लिनिक। बट वो जो है ना लाइक मैंने इंटरव्यूज में सिर्फ बोला था, बाकी मैंने सीवी में कुछ भी नहीं डाला था। तो अगर वो मैं डाल देता तो वो फिर अलग से डायनामिक होता। सो दिस वाज लाइक
ये मेरा बैकअप ऑप्शन था जो आफ्टर मैंने सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है ना मैंने मेयो का स्टार्ट करना था, सो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय सीवी। सो ये चीज़ थी, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अच्छा इब्राहिम, if anyone in the participant wants to unmute their mic और उसके माइंड पे कोई भी क्वेश्चन हो, so like they are हाँ कुछ open भी to करें। ask करिए। तो कोई भी part या even you can write in the chat box or just unmute your mic and ask the question freely, okay? This session is for you, so you guys must ask questions, right? Assalamu alaikum, Dr. Ibrahim. वालेकुम अस्सलाम। Sir, this is Mehroz. I wanted to ask, did you put your research position at Mayo that you did in these past 6 months at the top of your experience before applying for match cycle? नहीं, मैंने एक्चुअली रिसर्च पोजीशन जनवरी से स्टार्ट की थी और एप्लीकेशन जो मेरी चीज सबमिट होती है वो लास्ट सितंबर में होती है, 2024 सितंबर में जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो उसके अंदर Yes, sir. मैंने एक्सपीरियंसेस में कुछ भी ऐड नहीं किया था, जस्ट वहाँ पे सर्टिफिकेशंस का एक पोर्शन होता है जिसमें दिए होते हैं, तो मैंने लिखा था कि रिसर्च फेलो एक्सपेक्टेड इन फ्रॉम द जनवरी। सो मैंने जस्ट माइनर सा थोड़ा सा पार्ट पुट किया था क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड उन दिनों में मेरा रिसर्च पोजीशन का इंटरव्यू हुआ था और फिर मैंने रात से एप्लीकेशन सबमिट कर ली थी सितंबर में, वापस मैं पाकिस्तान चला गया था। सो मोस्टली मैंने वो पुट नहीं किया था। फिर मेरे 3-4 इंटरव्यूज जब हुए थे तो वो दिसंबर तक हो गए थे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च पोजीशन। तो मैंने इंटरव्यूज में थोड़ा बहुत बताया था कि यार अभी मैंने हाउस जॉब खत्म किया है, अभी मैं फारिग हूँ, अभी मैं नेक्स्ट मंथ यूएस फिर से आ रहा हूँ और रिसर्च पोजीशन में मैं स्टार्ट करूंगा। सो आई बिलीव कि रिसर्च पोजीशन का इंटरव्यूज में और एप्लीकेशन रिव्यू करने में इतना ज़्यादा हैंड नहीं था मेरा मोस्टली, बट ये कि इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रोटेशंस क्या है। मैंने जो रोटेशंस की थी स्टेप 1 2 3 किया था, मेरी रिसर्च ऑलरेडी पब्लिकेशन थी सीवी के अंदर। सो उसकी बेस पे जो मुझे जो है ना मोस्टली आई थिंक इंटरव्यूज मिले थे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पोजीशन। Okay, great. Thank you so much. Anyone who can ask anything? ओके। सर आपको मेरी बात आ रही है? Yes. अच्छा सर, मैं बिल्कुल इजी होकर क्वेश्चन पूछूंगा और मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जिस तरह मेरे बैचमेट्स हैं जो कि अभी इसी मीटिंग में हमारे साथ इंक्लूड हैं, अब हमारा ना कुछ सीनियर है जिसने एमएलई की है और हम मतलब पहला बैच है जिन्होंने मतलब ये डिसाइड किया था कि हम एमएलई करेंगे और हम कुछ 4-5 लड़के हैं और हमारा कुछ सीनियर भी नहीं है, ना ही हमारे कोई कनेक्शन है, ना हमारा कोई ऐसा सीनियर है कि जो रिसर्च कर रहा है, ना कोई ऐसा सीनियर है जो हमें रिसर्च के लिए गाइड करे। तो अब हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको करना है एमएलई, जो अपनी तैयारी में बैठे हुए भी हैं, हमने स्टेप वन की तैयारी स्टार्ट भी की है, हमें काफ़ी अच्छा हो गया और मैं एक्चुअली अभी थर्ड ईयर में, हमारी थर्ड ईयर खत्म होने वाली है। तो अब हम क्या करें? हम मतलब हम अपने कैसे कनेक्शन बिल्डअप करें, तो फिर हमारे लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए रिसर्च वगैरह करने? ओके, सो अभी आप थर्ड ईयर में फर्स्ट हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहूंगा, बट ये कि मैं कहूंगा कि देखो अभी थर्ड ईयर में आए हो, मैंने वही कहा कि रिसर्च स्किल्स जो है ना डेवलप होती है इस तरह की, आप फैकल्टी के कुछ ना कुछ आइडिया होता है रिसर्च का। फैकल्टी के साथ जब केस फोर्स स्टार्ट करते हैं वो बेसिक चीजें आती हैं, बट वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट लाइक सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग रोजाना देखते हो मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आते हैं। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल्स डेवलप करो, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉल फॉर रिसर्च, कॉल फॉर दिस, बहुत सी ड्राइव्स शेयर हो रही होती हैं रिसर्च लेक्चर्स की। तो वो जो है आप ओपन करो, वो देखो, पढ़ो। इसके अलावा जो है ना टॉपिक्स देखो, एक दो बंदों को देखो जो एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने ऑलरेडी पब्लिश किया, उनको बोलो यार हमारे पास जो है ना रिसर्च का एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, आप हमें गाइड कर सकते हो। रीच आउट टू द पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्ड कोई ना कोई कर देगा। तो इट्स ऑल अबाउट रीचिंग आउट टू द पीपल, यूएस में ये बात मशहूर है कि आप जो है ना रीच आउट करोगे, आपने नॉक करना है हर डोर पे। ये नहीं है कि आप बोलो यार ये बंदा क्या कहेगा हमें, तो इस चीज को अपने अंदर से निकाल दो कि यार ये बंदा क्या कहेगा। आपने अपनी तरफ से जो है ना नॉक करना है, बात करनी है, पूछना है कि यार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हमें दे दो, हम लोग काम करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। बाकी स्टेप वन है, स्टेप टू है, तो वो प्रोग्रेसिवली चीजें होती हैं। जिस बंदे ने भी स्टेप 1 2 किया होता है, 3 किया होता है, 2 किया होता है,
तो वही चीज़ें पूछ रहे होते हैं, यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, हर बंदे के अपने टाइम लाइन होते हैं, गोल्स होते हैं। बट मोस्टली ये होता है कि रिसोर्सेज कॉमन होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ नई चीज़ नहीं होती। बट ये कि स्टेप 1 2 तो बेसिकली हो जाते हैं फाइनल ईयर तक आप लोगों के। उसके बाद क्या करना होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वीज़ा के लिए कब अप्लाई करना है, स्टेप 3 रोटेशंस कंबाइन करनी है, रोटेशंस के लिए कैसे रीच आउट करना है। तो वो बार बार जो है ना ये वेबिनार से ही आप अटेंड करो। जैसे मैंने वेबिनार सुन लिए, किसी और का वेबिनार सुन लिया, तो वो सी बातें सुन ली, उसके बाद एक कॉमन चीज़ निकालो। ये नहीं कि मैंने आज एक बात की, दूसरे बंदे ने दूसरी बात की और आपने उसकी बेस पे जो है ना अपनी जर्नी चेंज कर ली। चीज़ें वो आपने करनी है जो आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि आप लोग अपनी बॉडी को अच्छा समझते हो, अपने माइंड को अच्छा समझते हो, तो आपने उस मुताबिक जाना होगा। ट्राई टू रीच आउट टू द पीपल मैक्सिमम, जितने लोगों से रीच आउट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन बात की चीज़ें होती हैं, बट आपने लिंक्डइन को भी से डेवलप करना है, कि देखना है बहुत से लोग मेल्स शेयर कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे रोटेशन किए हैं, हमने यहाँ पे रोटेशन किए हैं। आपने देखो होगा लिंक्डइन पे तो वो आजकल वो ये तो कॉमन कल्चर है कि थ्रिल वाला कल्चर कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो बहुत से लोग रोटेशन कर रहे होते हैं, तो उनसे जाके उनको मैसेज करो कि हाँ भाई आपने रोटेशन की है, काइंडली अगर आप मुझे हेल्प आउट कर सकोगे कि आपने कैसे किया, रीच आउट किया था, मेल किया था। तो 10 में से एक लोग रिप्लाई देते हैं मस्ट। तो वो आपको रिप्लाई देंगे, बताएंगे, तो अपने पास वो इन्फॉर्मेशन जमा करते जाओ। अभी से ही अपना ग्रुप बनाओ, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कॉपी पेस्ट करके रखते जाओ। कल को आप जब बाद में जाओगे तो आपको रोटेशन के लिए काम आएंगी, वीजा प्रोसेस में काम आएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल रिसर्च कि आप किस तरह जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को अपने लिए यूजफुल करते हो। भाई ये तो नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे जब जाते हो अपने लिए जो है ना शॉपिंग करते हो तो ब्रांडिंग की सारी चीजें सेव कर रहे हो रीले मिले, तो अपनी इन्फॉर्मेशन भी सेव कर लो सारी की सारी। तो ये सारी सारी चीजें जो है ना इस पर डिपेंड करती हैं कि आप जो है ना किस तरह जो है ना चीजों को लेके चलते हो। तो भाई तेज बनना होता है यूएसएमएल के अंदर, डम तो बनना है लेकिन स्मार्ट भी बनना होता है। लाइक यू नो डम ऐसा नहीं है कि लाइक आपको जो है ना हर चीज बुक वॉर्म बने हुए हो, किताबें लेके जो है ना सारा दिन किताबों में सर दिए हुए और बस बात खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रीच आउट टू पीपल, किस तरह बात करनी है, किस तरह आपने जो है ना अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो है ना एक प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है यूएसएमएल के अंदर, यहाँ पे डॉक्टर्स को बहुत पसंद है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मेरा एक और आखिरी क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से था। सिर्फ जिस तरह मैं थर्ड ईयर के अंदर हूँ, तो मुझे अभी रिसर्च के लिए बेसिक्स समझना, रिसर्च को मतलब वो सब चीजें बेसिक्स को समझना और ये सब चीजें अभी से स्टार्ट कर दूं, या अभी मुझे बड़ी देर है, मैं स्टेप 1 करूं और उसके बाद इस चीजों की तरफ तवज्जो दूं? यार अभी से कर लो भी, थर्ड ईयर में तुमने और क्या करना है बेसिकली। देखो स्टेप 1 दे दो, स्टेप 1 के साथ साथ वीकेंड पे प्रिपरेशन करो। अगर स्टेप 1 थर्ड ईयर में नहीं दे पा रहे हो तो फोर्थ ईयर में दे दोगे। तो वीकेंड्स पे रिसर्च कर लो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा आर्टिकल लोगों से रीच आउट करो, एक दो प्रोजेक्ट्स में पार्ट लो। ऐसे ऐसे रिसर्च प्रोफाइल डेवलप होती है। जब आपके पास एक शुरू में रिसर्च एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है तो बाद में लोग आपको तब अपने प्रोजेक्ट्स में भी लेते हैं। बहुत से जगहों पे जो होते हैं ना, लाइक मैंने देखा है, लाइक स्टूडेंट्स ग्रुप बने होते हैं, उनको बोलो यार मैं आपके साथ ये टास्क करूंगा ये टास्क करूंगा। तो इंडिविजुअल टास्क से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत टास्क करो, तो ऐसे ऐसे जो है ना रिसर्च प्रोफाइल डेवलप करो। इसमें ये कभी भी नहीं होता। मैंने उस दिन देखा, मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थे और उसने वो कह रही कि यार मुझे मेटा एनालिसिस में ये काम करने है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो मुझे बताएं। मैंने कहा खुदा की दिया भाई, स्टेप 1 अभी आपने थर्ड ईयर में देना है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप रिसर्च भी कर रही हो। तो लाइक मैं भी सरप्राइज था कि यार फर्स्ट ईयर के बच्चे भी जो है ना रिसर्च कर रहे हैं सपोज। तो लाइक आउट ऑफ नो वेयर फर्स्ट ईयर में किसी को कुछ पता भी नहीं होता, लोग एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं कॉलेज के अंदर और तुम लोग रिसर्च भी कर रहे हो। भाई अपना फर्स्ट ईयर एंजॉय भी कर लो, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करो, बेसिक सही तरीके से पढ़ो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली। तो बाकी थर्ड ईयर से जो है ना अभी आप प्रॉपर जो है ना थर्ड ईयर में आप वार्ड स्टार्ट कर रहे हो, पेशेंट्स देख रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, तो फैकल्टी के साथ ताल्लुकात हमारा बनाओ, तो आपको हेल्प आउट कर सकती है फैकल्टी। हमारा दोस्त। इलेक्टिव पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स, हाँ ये एक और ट्रेंड भी है हमारे पास कि आहा के अंदर इलेक्टिव के लिए जाते हैं, शफा के अंदर जाते हैं। और फिर उसमें मैंने देखे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की आजकल रील्स आ रही होती हैं। तो यूएसएमएल के अंदर होम कंट्री के इलेक्टिव्स का इतने वैल्यू नहीं आता मोस्टली, सच बताऊं, अनलेस अनलेस अगर आप इन डॉक्टर्स के साथ काम करते हो जो शफा में या क्या नाम है अशोकत खान में या आहान में सपोज डॉक्टर्स है जिन्होंने यूएस के अंदर यूएस से ट्रेनिंग की हुई है, उनके दोस्त यूएस के अंदर रहते हैं, उनको बोलो भाई आपने दोस्त यूएस में मेरे साथ कनेक्ट करवा दो, सबको मुझे रोटेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हर वो बंदा जो आपको यूएस के अंदर से कनेक्ट करवाए, वो चीज़ जरूरी है। जो बंदा यूएस के साथ ताल्लुक बना रहे हैं ना वो जरूरी है, आपका चाचा मामा ताया जो भी है। तो अगर वो अच्छे लोग हैं, अगर वो आप समझते हो कि अभी से इनको सलाम करना शुरू कर लो, यहाँ भी कैसे हैं, ईद मुबारक बोला करो। तो डिपेंड करता है कि कल को आप जाओगे। मोस्टली लोग हेल्प नहीं करते हैं, मोस्टली सच बताऊं मैं,
आप अपने दोस्त भी हेल्प नहीं करेंगे, आप अपने कोलीग्स भी हेल्प नहीं करेंगे, बट स्टिल यू कैन ट्राई योर बेस्ट कि आपने उनके साथ तभी से कनेक्शन बनाने कि यार वो कल को आपके लिए रीच आउट करें, आपके लिए कुछ ना कुछ वाउच कर सके, समझ आई? तो इस तरीके से जो है ना वो हेल्प आउट कर सकते हैं। सर्जिकल रेजिडेंसी के लिए मैंने पहले से बताया कि यूएस में आओगे, यूएस के अंदर डॉक्टर्स के साथ अच्छे से रोटेशंस करोगे और यहाँ पे बैठ के रिसर्च करोगे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जब तक तुम्हें फायदा होगा। ये तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड है तो फिर वो अलग बात है कि ग्रीन कार्ड का थोड़ा बहुत एज मिलेगा, बट अगेन सर्जिकल इज लाइक टाइम रिक्वायरिंग स्टफ, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सप्लोर किया तभी। सपोज मेरे साथ कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं सर्जरी में, यहाँ पे साल हो गया उनका, तो अगले साल वो अप्लाई करेंगे। अगेन इट्स नॉट लाइक 100% कंफर्म नहीं होता कि यार उनको क्या आउटकम होगा, लाइक उनको सर्जरी मिलेगी नहीं मिलेगी डिपेंड करता है, बट इट्स रिक्वायर्ड लाइक लॉट ऑफ publications in US, not in Pakistan or your home country. Ibrahim, we have just 2 minutes left. So first of all, thank you so much for joining. In a short invitation पे. I know you are so busy over there in US, लेकिन still आपने time निकाला. And to all the participants, thank you so much for joining. इंशाल्लाह हम इस तरह ही sessions arrange करेंगे. और इसके साथ साथ हमने एक कोर्स इब्राहिम यू नो दैट हमने मिड रिसर्च हब के प्लेटफॉर्म से हमने कोर्स अभी स्टार्ट किया है जो 10 जून से हम स्टार्ट करेंगे. सो लाइक इफ एनीवन इज अप फॉर रिसर्च तो दे कैन फिल द रजिस्ट्रेशन लिंक और फिर इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करेंगे. एंड थैंक यू सो मच इब्राहिम. बाकी हम इंशाल्लाह आगे भी इन टच रहेंगे और आई होप कि इस जर्नी में आप जब भी हमको ज़रूरत हो आपका तो आप हेल्प करें. Mostly I do post some things with the time on my stuff, so कुछ ना कुछ लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो साथ साथ पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो देखते जाएं, अपने पास रखते जाएं इन्फॉर्मेशन. बाकी बी स्मार्ट इन बी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशंस, डोंट थिंक कि लोग क्या कहेंगे, और हर चीज़ वो करें जो आपके लिए फायदेमंद हो और ओपनली करें बात. बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, सॉरी. Thank you Ibrahim, thank you.